Ngiai khublei phi baro kilong yeng kilong sem ki basngap ingi ne gamen. और इस समय पर आप सभी घर और परिवार के लोगों को हम अभिनंदन देते हैं Haga kerteng ka ba iet ka jong utra Jesus Christ. और वो भी प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में। Ngadoni ka khubor ban yakran bat phi ne gamen. और इस समय मेरे पास में परमेश्वर का वचन है आपके बीच में देने के लिए Nga khat eka bagare ka jutang jong kasnam. और हमने इसे बुलाया है लहू का वाचा। Phi kat kum ka tien ka jong blai. अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार Ublei yo banga ma phi ngi shakri udai ublei jong ka jutang. वो परमेश्वर जिसकी सेवा हम और आप करते हैं वो जो है वाचा का परमेश्वर है। Haki por ki ba mendai ka por jo gis iem mendai ka jingete jutang ka trekam ha. और हम देखते हैं कि पुराने समय में जो है जो वाचा है वो बहुत ही ज्यादा कार्य करती है। Nrei hakani ka prathai jongi menta kani ka jingete jutang kam dan shu ka prathai jongi. लेकिन आजकल के ज़माने में हमारे ज़माने में जो है आजकल हम वाचा को नहीं देख पाते हैं। Pimla shu ban chania yeno kini gisngi. आज के दिनों में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। Tim ka ei ka jingmot jutang. आपको पता है कि वाचा का अर्थ क्या है? Jutang ka bamot ka jingya menjur jingmot lane ka jingete kular hapadang ki arliang mamla. वाचा का मतलब ये है कि वादा रखना या वादा करना दो इंसान या दो लोगों के बीच में। But nakata ka daw pini iba ublay na daw uthaw ya ubriyo. और इसी कारण आप देखेंगे पहले से जब परमेश्वर ने मनुष्य को Dan बनाया sibon ki ki ba ubriyo ushet kala ya unang thaw la jong. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कि मनुष्य ने अपने ही सृष्टिकर्ता को धोखा दिया। Nrei ublay pat ba uiet palat ya lagi jong ka jing thaw. लेकिन क्योंकि परमेश्वर अपनी सृष्टि से अपने बनाए हुए लोगों से इतना अधिक प्रेम करता है Man la ka por ukhot ya ukhon menriyo siya ka jing kala ka bamon. हमेशा वो मनुष्य को बुलाता है कि वो मन फिराए। But ndai tang ba ukhot ya ki briyo siya ka jing kala ka bamon. और केवल इतना ही नहीं कि वो मनुष्य को बुलाता है कि वो मन फिराए, Ublay dala dihi uyate jutang bat ubriyo. लेकिन परमेश्वर ने खुद को ही अपने आप ही मनुष्य के साथ वाचा बांधा। Hadian ba ublay la pan silay ka prathai daga mendai. हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जब परमेश्वर ने पूरी धरती को जो है पानी से जब भर दिया Ka Bible kong ba ublay uyate jutang ba ubriyo ba unum pan silay shu ka prathai na daw daga por. और बाइबल बताती है तब जाकर परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वाचा बांधा कि वो तब से कभी भी संसार में जो है पानी से नहीं संसार का अंत करेगा। But day ka daw bu yo simple nga beneng. Mala ka por lior ngi iba tangla siya ka beneng lawan ma u hang te jrong. और Wa इसी- uni uday ka jutang bang anum penjat shu ka prathai. और इसी कारण हमेशा हम इंद्रधनुष को देखते हैं आसमान में, क्योंकि वो इंद्रधनुष दिखाता है कि वो एक वाचा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच। Ha ka Bible ngi dan arjat ki jingete jutang ki ba ublay ute mendai. और हम देखते हैं बाइबल के अनुसार दो तरह का वाचा है जो कि परमेश्वर ने प्राचीन समय से बांध कर रखा। Ka baning kong ngi ong ya ka jutang ka barim ba ka baar ngi ong ka jutang ka bathumai. पहला जो है वो है पुराना वाचा और दूसरा जो है वो है नया वाचा। Wala da ubriyo bam tip blay ha ki jaka ki bakendong tam jong ka prathai utiep ya ka jutang. और इतना तक कि वो मनुष्य जो सबसे कोने में जाकर बैठा है जो कि कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो इस वाचा के बारे में जानता है। But nakata ka daw ka jutang ka jong blay ka trekam ha ki ar banta ka bathumai bar ka barim. और इसी कारण परमेश्वर का वाचा जो है वो दो भागों में बट कर आया है, वो है पुराना वाचा और नए वाचा। To kini puli banga na gesti ka baning kong jong Petrus kalanong ka baning kong ka dekot ka bakhat pra khat khandai hadu arfo. और आप मेरे साथ देखिए पहला पेतरुस की पत्री में वो है पहला अध्याय का 18 पद से लेकर। Haba pitip ba om de ki basep kum ka rupa lani ka siar bala si uspa ya fi naga ta ka jinglong jing im bathala jong fi ya ka bala IT pateng la pateng hakikpa. Hanrai daga snam ka bakodor kum ka jong ukhon lang bran baklem pop baklem to bria ka jong ukres keng ya uba ulatmu lupa nado bampat seng nong remi ka perthai harai la penmi pau ya u kini ki ya ki bakhat do na ka banta jong fi. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निर्बलक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया है,
पर उस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। Bal ngia keren menta ya kan ya jutang ke senam. और इस समय पर हम लहू के वाचा के बारे में बातें करेंगे। Pi ublei bante jutang uhap banda siu dor ke berem tam. और परमेश्वर के लिए जब वो वाचा बांधने जा रहा था, उसके लिए जरूरी है कि वो कीमत चुकाए, और वो भी बहुत मूल्य कीमत। Nakata kadau upa ya ujong khon balaka marway uji sukres ban sya yap daga dor ke berem tam. Kenang baun siu spa ingi daga senam ke jong और इसी कारण उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और ताकि वो मरे और लहू बहाए, और उसी के लहू के द्वारा उसने हमारे साथ वाचा बांधा। Bat hakan ketien jong blei ke bangini pule menta. और इस समय पर इस परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ने जा रहे Ngini हैं, keren shua ya kata ke jutang ke berem. हम बातें करेंगे पुराने वाचा के बारे में। Tama pidi ben tiap bau blei jute jutang daga weipat like naga jingete jutang daga senam. और आप ये जाने कि परमेश्वर जो है लहू को छोड़कर किसी और चीज के द्वारा बिल्कुल वाचा को नहीं बांधता। Kasnam ke daga rai ke bakhat du tam ke jong blei ya ke bau nia te jutang bat ubreu. और लहू जो है वो अंतिम चीज है जहां पर कि परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ वाचा बांधता है। Kasnam ke daga dor ke berem tam ke jong blei bat ke jong ubreu hiru kumjo. और लहू जो है सबसे मूल्य और सबसे कीमती जो है परमेश्वर और मनुष्य दोनों के लिए है। Haga siti ki Hebrew kal nang bakhandai ke dekat ke ba khatsan ke keren ya kata ka jutang ke berem. हम देखते हैं इब्रानी की पत्री 9 अध्याय का 15 पद जो है वो हमें पुराने वाचा के बारे में बताती है। Ka ong ban namar ka ne ulang uksiang ke jutang ke bathmai ba bala ja kata ka jing yap ya ke ban siu spa ya kita ke jing palat apa kata ka jutang ke banengkong kita ya ke bela khat ke ni pediang ya ke jing kular na ke benta ke bam jukun. इसी कारण वो नई वाचा को मध्यस्थता से, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अंत मिरास को प्राप्त करें। Pi ka ni ke dekat ka ong bau Jisu un siu spa no ya kita ke bahapok ke jutang ke banengkong. और यहाँ पर जो है ये वचन कहती है कि प्रभु यीशु उन सभी लोगों का जो है उद्धार करता है जो पहले वाचा के अंदर में है। Te ke ni ke jutang ke banengkong. तो क्या है ये पहला वाचा? Hadin bau breu ule pop persya ya blei. जब मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ पाप Ka किया। Bible ke tu bau breu la siu bani kendo bau blei. बाइबल बताती है कि मनुष्य और परमेश्वर एक नहीं हो Ke सकते, kum ta blei uthau biang kalat kum no bau breu un ya bani syam bau blei. और तब जाकर परमेश्वर ने दूसरा रास्ता चुना कि किस तरह मनुष्य जो है परमेश्वर के पास फिर से आ सके। Bani yang ban map ya ke pop ke jong breu kala da ka wei pat ke lenti. और मनुष्य के पाप को क्षमा करना बहुत ही कठिनाई की बात है दूसरे रास्तों के द्वारा। Bat ublei usya da ka ni ke jutang ke banengkong ba kata ka dei da ka senam jong kimran. और यहाँ पर परमेश्वर ने उसे मौका दिया, और वो है जानवरों के लहू के द्वारा। Ka dekat ka ba arfu ar ka jo ke lenong ke bakhandai Hebrew ka ongkum ni. और 9 अध्याय इब्रानी का 22 पद जो इस तरह से कहता है, Kong bakat bakum ka hukum ngala ban ong balajan kiai baro la pen khoj da ka senam bat klem ke ba pen mi senam amdan jing ma. सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। Na do ke jutang ke banengkong ublei punan kam da ka senam ban map no ya ubreu. हम देखते हैं पहले वाचा से ही परमेश्वर ने लहू का इस्तेमाल किया ताकि वो मनुष्य को क्षमा कर पाए। Bat kata ka senam ke senam jong kimran. और ये जो लहू है वो है जानवरों का लहू, Haba ubreu ule pop ki ju peniap ya ulang berat. क्योंकि जब कोई मनुष्य पाप करता है तो वो जो है मेमने को मारते हैं। Haga ba urang ba lendo un duai lembau tulang berat bat da ka tu ka senam un senrek ya tu unong pop. जहाँ पर कि महायाजक जो है वो प्रार्थना करता है उस मेमने के ऊपर, और वो लहू को लेकर जाता है ताकि वो उस लहू के द्वारा लोगों के पापों को क्षमा कर Penban सके। ka ni ka senam ju ki berat kalong tang sipor bakanwan ka jutang ka baar sendan. लेकिन ये लहू जो है जानवरों का वो कुछ समय के लिए है, ताकि जब तक नई वाचा ना आ जाए। Nama ka Bible hi ka ong bagalong ka pamla e ka senam ju ki masih kertong bat ki belang ban map no e ka pop jongi. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मेमने या बकरी या फिर बैल के जो लहू वो काफी नहीं है मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए। Wala kata sipor ka senam ki merat ka sitap ki pop rai kamla ban pen khoj e ka pop. लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए जो है जानवरों का लहू जो है पापों को ढाक कर रखता है, लेकिन वो पाप को शुद्ध नहीं कर सकता।
Kasti segi Hebrew kalau nang bakcipau. और इब्रानी की पत्री 10 अध्याय Kadukot kabalay bagabasau ka ang ba ya kita kipop ban penkermawan manla kasnam kimrat kalaban tap tang sisnam kamot hawai pau snam na kan mau biang ga jo kapom. और यहाँ 3 और 4 पद में ये कहा गया है कि जानवरों का लहू जो है केवल कुछ समय के लिए ढक कर रखता है, लेकिन हर साल वो पाप फिर से याद दिलाई जाती है। Nama kadukot kabasau ka ang ba kalong kabamla e kasnam kimrat ban ket no ya kapom. क्योंकि 4 जो पद है वो कहता है कि ये हो नहीं सकता कि बैलों और बकरियों के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिले। Pia ka jutang jong kasnam jong kimrat mensua urang ba lang do ula ban pendep ye kani tang sipor ban yada namar kasnam kimrat kamla ban penkhui lot e kapom. और हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जो है याचक जब ये करते हैं तो वो केवल कुछ समय के लिए ही लहू का इस्तेमाल और लहू से पापों को ढाका जाता है, लेकिन उस पाप को हटाया नहीं जा Nama सकता। kata kadukot kabasan Hebrew kalau nang basipau. और उसी तरह से 10 अध्याय इब्रानी का 5 पद कहता है, Kakran ye ka jutang kabaar. वो कहता है इस नई वाचा के Ang बारे में। nabakumta haba uwan siya kani ka pertay uang ka jing kanya ba ka jing aingo mem sim lamon re ka met melakre yanga. इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। Pi ka Bible ka itu ba ublay upha no ya Jesu balay na magasnam ka jong ublay hi tang makakalaban penkhu ye ka pop ka और jong. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि वो केवल परमेश्वर का ही लहू होगा जो मनुष्य के पापों को क्षमा कर सके। Ba Jesu hi uang ba ya ka met melakre yanga. और तब यीशु ने खुद कहा कि शरीर को तूने मेरे लिए तैयार किया। Nabakumta kasnam kimrat kam tre kam syo kadai tang kasnam jong ublay hi Data kada ba Jesu uwan hi na beneng kum ka jelong brio ban permi e kasnam ka jong ublay. और यही कारण है कि जानवरों का लहू वो कार्य नहीं कर सकता, और तब जाकर प्रभु यीशु मसीह उसी का लहू जो परमेश्वर का लहू है, केवल परमेश्वर का लहू ही मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है। Kasiti ka baar si kinong koren kal nong balay dukat bakat saw. और हम देखते हैं 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 4 पद, Ka Bible ka itu igini ki kentien ki bangini pule. और बाइबल जो है वो इस तरह से कहती है, Handrai la pen e no i ka jing mut jong ki namar hado ka ni ka sngihi haba pule ya ka jutang ka barim kata ka ju ka jing ka akhmat kaya isa klam daloy no na ba ha ukres on pendam no eka. परंतु वे मतिमदो हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उसके हृदय पर वही पड़ा रहा, पर वह मसीह में उठ जाता है। To ngini pe mita ka Bible ko ang bagate ka jutang ka barim kamla te. और यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल बताती है कि वो पुराना वाचा वो नहीं कर सकता, Ti ka bamut ayu ka snam jong Jesu pat hangi. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का लहू उसका अर्थ क्या है? Agaway ka si Jesu wan long brio si ka pertay. एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आया। Uya thulot ye baro e ka plan ba ublay upha yu si ni ka pertay. उसने पूरी संसार को बताया परमेश्वर का उद्देश्य, ताकि वो इस संसार में क्यों आया Waya है। thulu paru bagin sa sanar na yu Jesu hagaway ka singi. और उसने ये भी बताया कि एक दिन जो है सभी लोग मिलकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएंगे। Bat na kata kadaw hagata ka singi bagi sanar na yu. और इसी कारण जिस दिन उन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया Kila sempat yun hagayeng jong upilat. और पिलात के घर पर जो है उसे कोड़े मारे गए, Kasnam kala tut na dukli adu kujal. लहू जो है सर से लेकर पैर तक बहने लगी, Ki pendeng ye ka pan singat sya bagi sam sepok ka kli yu sya. और जो है कांटों का मुकुट जो है उसके सर पर जो है चुप चुप कर पहनाया। Kila dung ye gikti bagi kijat. उसके हाथ और उसके पैरों पर कील ठोकी गई। Na baro kiliang kasnam kami na gamet ka jong Jesu. पूरे शरीर से जो है यीशु मसीह के शरीर से लहू बहने लगा, Kanang bagata kasnam kani map no ikipop ka jong ni. ताकि वो जो लहू है वो हमारे पापों को क्षमा कर सके। Hi mentang ini pe hadokat no bagasnam jong Jesu kadon ka bor ya ka bang ngi map no ikipop ka jong ni. और अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। Ka beneng kong e सबसे पहला kasnam jong Jesu ka pen khoi no ya ka pop jong ni baro. प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे पापों को क्षमा करता Ka है। siti ka beneng kong ka jong Yohanes पहला यूहन्ना का पत्री kalonong ka beneng kong hi पहला bat ka अध्याय dukat ka benyo. और 7 पद, Kong rei la dang iya kata ka jing syai kong baulong ma kata ka jing syai ngi don ka jes lok lempar lok hi bat kasnam u Jesu u khon jong u ka pen khoi yang i na ka pop baro. पर यदि जैसा
वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Hi kasnam ke jong Jisu balik ke kodor kan ni. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना मूल्य क्यों है। Nama ka dai tang mangka ke balak pun khoi no igi pop jongi baro. Mdai tang kendian baro. लेकिन केवल यही लहू है जो कि हम सभी के पापों को क्षमा कर सकता है। Ka ba kongsan ke long tala dangi ngai bau blai lapan mi pat yu ni ki bayam. Bat bangi fla ke sentur bau Jisu dai trai kasnam Jisu ke sat yengi. और केवल इतना कि हम अपने मुंह से अंगीकार करें कि हम पापी हैं और हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उसके लहू जो है हमारे पापों को क्षमा करता है। Nang ta ka ba ar balik kasnam jong Jisu ke long ke ba kodor. और दूसरा हम देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो मूल्य है। Nama ka dai kasnam jong ublai. क्योंकि वो लहू खुद परमेश्वर का लहू है। Ngi pe ka kitab ki kam ki apostol ke long ba ar pau. अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय Pi ka dekhot ka ba ar pufra. और उसका 28 पद Ka ong kumni singap वो ba. इस तरह से कहता है, Kong tu sumar Jepang ila dia ba Jepang kata ka kenuhon baro. Ya ka ba umen siem ba khoj ula pelong pi kinong syarai ban besai ka balang ublei ya ka ba ula thiet da ka snam jong uhi. इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अस्थायी ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Nila e pulina do ko bandeng kong tam ya ka sti ko bandeng kong jong Petras. हमने पहले पढ़ा पेतरुस की पत्री Ba से shimla se uspa e fi da ka rupala ne ka ksiar. कि आपको जो है उसने उधार नहीं दिया सोने या Handrai la चांदी se से, uspa e ngi da ka snam ka jong ublei hi ka ba uthiet ya ka balang ka jong uhi. लेकिन उसने हमारा उद्धार अपने परमेश्वर के लहू के द्वारा ही उसने अपनी मंडली को खरीदा है। Nakata ka da balai ba ka snam Jisu ka dan bor ru ka ni gani. और यही कारण है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के लहू इतना मूल्य और उतना सामर्थ है उसके लहू Nala में। oi pi ka bandeng kong nama ka don ka bor ban pen khoj no yangi na ka pop baro. क्योंकि सबसे पहला जिस तरह हमने कहा कि उसमें सामर्थ है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करे। Ka ba ar दूसरा, nama ka de ka snam jong ublei hi. क्योंकि वो लहू जो है वो परमेश्वर ही का लहू है। Dena takra bu ya Jisu shimla khana u Joseph. और इसी कारण यीशु मसीह को जो है यूसुफ से नहीं Hado जन्माया ba ka गया। Mary ka thai sati ka kli ya u angel ka ong kumno. Ngan puni u khon habang ngampat ya kendo ya ubrio. इतना तक कि मरियम जो कि एक कुंवारी स्त्री थी उसने पूछा उस स्वर्गदूत से कि कैसे, मैंने अभी तक किसी पुरुष को जाना नहीं, कैसे मैं गर्भवती रहूंगी। U angel jong blei wong em pam don kam ya ubrio. Ndrai ka bor ka jong bahake tame kan ka hlo jong pha ba phan sapun ya ikhon. और तब जाकर स्वर्गदूत ने कहा कि तुझे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की परछाई तेरे ऊपर होगी और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो है तू गर्भवती Bat रहेगी। phan ai kerteng ya uru u Jisu namba on pen emi ki brio nagi pop jong ki. और तब उसका नाम तू यीशु रखेगी क्योंकि वो जो है लोगों के पापों को उद्धार देगा। Ton kami ka snam jong ukpa bakin jado. उसे किसी भी मनुष्य पिता या फिर किसी भी शारीरिक पिता की जरूरत नहीं है। Kay ka ban jala da ya u Jisu khana u Joseph. क्या होता अगर यीशु मसीह को यूसुफ से जन्माया जाता? Unum ya fer na fi na ngaru kum jo. उसमें कोई फर्क नहीं होता आपके और मेरे बीच में, Nama u yo e ka snam jong ubrio hi u pop. क्योंकि वो भी मनुष्य के लहू को लेकर जन्म लेता। Dai na ta ka daw kan ba wan na bneng. Wan da ubrio wan be na jong. Ka de ka snam la jong hi. और इसी कारण वो जो है स्वर्ग से आया, वो भी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा, उसने अपने ही लहू के द्वारा हमें उद्धार दिया। Kabalay balay ka de ka snam ka don bor ka ni. और तीसरा, क्यों इस लहू में इतना सामर्थ है? Ka Bible ko ang ba ka de ka snam ka bakran khamba bani ka snam jong Abel. और यहाँ पर बाइबल बताती है कि उसका लहू उस आबेल के लहू से बेहतर है। Hebrew ko nang ba khat ar. हम देखते हैं इब्रानी की पत्री जो है 12 अध्याय Ka dekhot ka ba ar husau. 24 पद। Kaya tu yangi bahau Jisu siang ka jutang ka batamai bada ka snam ka jing sinret ka bakrani ki ba khamba bani ki jong u Abel. अब नई वाचा के मध्यस्थता यीशु की छिड़काव के उस लहू के पास आए हो तो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। Pikan mau bau Abel udan arngut sipara. आपको याद है कि हाबिल के 2 भाई हैं। Unmen jong u kerteng ukan. उसका बड़ा भाई जो है वो है काइन, Bat baro arngut kiawan ra ka jing kenya khmat jong blei. और ये दोनों जो है परमेश्वर के सामने जो है बलि को लेकर आए। Ukan wan ra de ki so na ka khendo.
काइन जो है वो अपने फल को जो है वो लेकर Nama आया, udah unong rap lengka. क्योंकि वो खेती बाड़ी करने Kat वाला bau है। Abel pat wanra dagas nam jong kilang berat. लेकिन यहाँ पर हाबिल जो है वो मेमने के लहू को लेकर आया, Ublay gitu ki por uiet ye gas nam. और उस समय में परमेश्वर जो है लहू से प्रेम करता है। Ha ka por baglewan ai ni ka jingkinya ka Bible ko ang baga ding jong blay kawan ban jilia no tang ye ka jingkinya jong Abel kamwan ban pe ye ka jingkinya jong kan. और यहाँ पर जब ये दोनों भाई जो है परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाने के लिए आए, तो परमेश्वर ने जो है हाबिल के दान को लिया, लेकिन उसने दूसरे भाई के दान को नहीं अपनाया। Balay ublay upriang tang ye ka jong Abel. क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर हाबिल के दान को लिया? Nama wanra ye gas nam. क्योंकि वो लहू को लेकर आया, Ya ka bau ublay usem snow bhae. जिससे कि परमेश्वर चाहता है। Teka tu gas nam tu ka por ka penso bhae ublay dagas nam ye kimran. और उस समय में परमेश्वर को जो खुश करता था वो है जानवरों का लहू। But ha ka tu ka por ukan ubitar ba ubisni lau jong para upniap sendani utagas और ni. यहाँ पर इसी जलन के कारण जो है उसके भाई ने जो है उसकी हत्या कर दी। Ka Bible ko ang ba ukan utep no ela upara ka khindau ule kombam tip ye ruya. और यहाँ बाइबल बताती है काइन ने जो है अपने भाई हाबिल को जो है दफना दिया और किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। Kendit kawan ka sur jong blay ka ba ong siya upara jo me Abel. लेकिन अचानक एक आवाज उसके पास आई और पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भाई हाबिल? Ukan ule komba ukhlam le ye ruya. और यहाँ पर उसका ये जो भाई है उसने ऐसा किया जैसे उसने कुछ को पता ही नहीं है। Ublay uang mem tip bagas nam jong para jo me ka ang siya na ka khindau. यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि क्या तुझे पता नहीं कि तेरे भाई हाबिल की जो लहू है धरती से परमेश्वर की तरफ जो है पुकार रहा है। Kas nam ki meraru ka ye tray lang ha tu ka por banwan ra ay ka jing tray ka jong blay. यहाँ पर हम देखते हैं कि जानवरों का लहू भी जो है वो पुकारता है ताकि परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके। Penban wala daga ni nam jong Abel ka pertan ka khindau kamla apa ban pet eminu inu. लेकिन अगर ये लहू पुकारता है इस धरती से, लेकिन फिर भी वो किसी का उद्धार नहीं कर सकता। Warga senam jong ki merar ba wanra ru kam simla ban pet eminu inu. इतना तक कि वो जानवरों का लहू जो वो लेकर आता है वो लहू भी किसी का उद्धार नहीं कर Dahil सकता। kenapa ka Bible ko ang baga senam u Jesu ka keren kamba ban ye ka senam jong Abel. और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बेहतर है और वो अच्छा है, वो पुकारता है हाबिल के लहू से। Ho imla ban len ba ublay up diang ye ka jing duai jong Abel. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है उन प्रार्थनाओं को सुना। Penban kata ka jing pediang jong ublay kalong tangyau Abel kam dai pat ye kiwe. लेकिन यहाँ पर जो उसने हाबिल के प्रार्थनाओं को सुना वो केवल उसी के लिए है, किसी और के लिए नहीं। Wala da kata ka senam jong Abel ka baha ka keren siya ublay ni ka khindau. इतना तक कि हाबिल का लहू वो अच्छा है, वो पुकारता है, वो बातें करता है परमेश्वर से। Andai ka senam jong Jesu ka perta siya ukpa na ka bata ka pertai bro kowe. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो पिता के पास पुकारता है पूरी संसार के लिए। Na kata kata utra jong Jesu al ka jong ka senam ka dia pna ulum Calvary. और इसी कारण हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया उस कल्वरी क्रूस के ऊपर। Ha ka por ka ba khaddo ka ba unlek no siya pa ulum Calvary. और यहाँ पर हम देखते हैं अंतिम में जब वो कल्वरी पर जा रहा था, Bar ka Bible ke thu ba ukhot ye ki senran ki jong u. और बाइबल बताती है कि उसने अपने चेलों को बुलाया Upelong ka jing khawai utrai. और यहाँ पर उसने जो है प्रभु भोज रखा। Bar uang ye ki apostle uang sim ka ni ka senam jong a. और यहाँ पर उसने प्रेरितों से कहा कि इसे लो क्योंकि ये मेरा लहू है। Uang uno ba di na ka ni undan ka jing em ba uno bam di unam dan ru ka jing em. वो जो इससे जो है प्रभु भोज से लेगा उसमें जीवन होगा, और वो जो नहीं लेगा उसमें जीवन नहीं होगा। Ula pen ilu pa baga senam jong Jesu ka sajau ha kata ka singi. क्योंकि यहाँ पर उसने दिखा दिया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बहने वाला है। Dai na ta ka daw baga jutan ka senam jong Jesu ka khamba ban ye ka jutan ka barem. और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के लहू के वाचा में ज्यादा अच्छाई है उस पुराने वाचा से। Namar ka ba ningkong ka pen khot yang ini ki pop baro. क्योंकि सबसे पहला वो वाचा जो है हमें हमारे पापों से छुटकारा छुटाता है, Ka baar ka senam jong Jesu ka dai ka senam jong ublay hi. और दूसरा वो है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू वो खुद परमेश्वर का लहू है। Ka balai ka senam jong Jesu ka keren khamba
Banyak kiai-kiai ki jong Abel. और यहाँ तीसरा जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो और अच्छी तरह पुकारता है हाबिल के लहू के तुलना में है। Mereka kuat ban ong ipi bau blate ula ai laga jong kasnam halum Kalbari ar hajar snam menshua. लेकिन इतना हम ये कहेंगे जरूर कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने खुद अपना लहू 2000 साल पहले कार्मेली क्रूस के ऊपर बहाया Bau no banget ya unyo ka jing im bam jukut. ताकि जो कोई भी उस पर भरोसा करे वो अनंत काल का जीवन प्राप्त Ya करेगा। ka bam mishim la sius pa ipi daga rupa la ne ka ksial. क्योंकि आपको जो है उद्धार नहीं दिया गया किसी सोने या चांदी के द्वारा। Kaspa kamla ban maap ipi. कोई भी धन और दौलत पैसा आपको क्षमा नहीं कर सकता। Kaniam kamla ban maap ipi. धर्म आपको क्षमा नहीं कर सकता। Daga datang ke snam ka jong Jisu. केवल प्रभु यीशु मसीह का Bala लहू। fi khot kerpat de kerteng ke jong Jisu ke ne ka men. और आज की रात अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, Pan maap no ya lagi jong ki pop ke jong fi baro. अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, Kot jing mot na ba pin sekri ya Jisu ke jing im ke jong fi. निर्णय लेते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे अपने जीवन में, Mentahi kom ne ka snam Jisu kan saj no ya ki bam hop ke jong fi baro. इसी समय पर प्रभु यीशु मसीह की लहू जो है आपके हर एक अधर्मों से आपको छुटकारा Mamnon kan देगा। no ka bamla bat ka snam ke jong Jisu. क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है प्रभु यीशु मसीह Ka के Bible लहू ko में। ang lagi pop jong fi ki saw han ki sali kum ka yor. बाइबल बताती है कि अगर आपके पाप कितने भी लाल क्यों ना हो वो पूरी तरह से सफेद हो जाएंगे। Mamnon ka wer ka pop ik ba blay omla ban mau. ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। Baro kalong ka bala haga snam ke jong Jisu. सभी पापों की क्षमा प्राप्ति है यीशु मसीह के लहू में। Lada dan na preng jong fi baduai. अगर आप में से कोई है जो प्रार्थना करते Nakwa हैं, ban ya tu fi. हम बताना चाहेंगे Ba kan mau ya ka snam ke jong Jisu. कि हमेशा आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को Ka याद ba करें। khatdo. और अंतिम में Ka snam jong Jisu ka dan ka bor ban ya dayangi na ki bor jong ka jingdom. प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है कि वो हमें अंधकार की आत्मा से बचा कर रखे। Baro ngiatip ke kitab Exodus kal nong ka bakhanar. हम सभी लोग जो है निगमन के 12 अध्याय को जानते हैं। Bago to ka por ban perbina ikon Israel na ri Egypt. उस समय जब इजराइल जाति को मिस्र देश से निकाला गया Moses uai ka hukom ban ta daga snam ki shaukat ke jingkang. और यहाँ मूसा ने सभी अपने इजराइल के लोगों से आज्ञा दी कि वो लहू को अपनी चौखट के ऊपर लगा कर Haga ba ka रखे, klam ka sabam ban penyap ikon ng kong baro jong ke Egypt wat na jong siem kom jo. जहाँ पर कि मृत्यु जब गुजर रही थी मिस्र देश से, इतना तक कि उसने फिरौन राजा एक पहले लौते को भी नहीं छोड़ा। Rai haga no ka yeng ya ka bala ta daga snam kata ka klam kamla ban rong. लेकिन जिस घर पर भी देखा, उस मृत्यु ने जब देखा कि चौखट में वो लहू है, वहां पर वो मृत्यु नहीं आई। Ka snam ko jong Jisu ka dan ka bor ban dayangi na ka ba jingma baro jong ka jingim. प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है कि वो हमें जो है हर अंधकार, हर दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सके। Nakwa bangan duai ya fi. इस समय पर हम आपके लिए प्रार्थना Lara करना fi angnot ban चाहेंगे। yo mam no ban yo ru ka jingda ka jikir jong blay khot ka snam jong. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जो है हमेशा ढक कर रखे, प्रभु यीशु मसीह के लहू को कहे। Pin si ibo blay jong fi unum pele na e ya kata ka kerteng ka badan bor jong Jisu. और आप देखेंगे कि आपका परमेश्वर जो है अपने नाम को जो है, अपने लहू को जो है बेकार नहीं जाने देगा Lara आपके fi kot जीवन jimot से। ban priang Jisu ta ka miet bo ka ti jong fi ka sadam. अगर आप जो है निर्णय लेते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने हाथों को अपने छाती पर रखें, Ngan duai nang ni. हम प्रार्थना करेंगे। Blay bo pa jong ba habneng. हमारे प्यारे परमेश्वर पिता जो स्वर्ग Haga पर है, kerteng ka jong Jisu Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Ngawan na khmat jong me. हम आपके सामने आते Lang हैं bagas nam ka jong Jisu. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Ngawan ra ye kini ki long yeng ki long sem ma khmat jong me. परमेश्वर हम इन सारे परिवारों को आपके सामने Ibas लेकर ngap आते ye हैं, kani ka tien ka jong me ka bang ye krem. जो कि सुन रहे हैं हमारे इस वचन को जो हम बातें Dan na कर preng रहे jo ki हैं। ki bakwa ban priang ye me ko Jisu. परमेश्वर उनमें से कुछ है जो आपको अपनाना चाहते हैं Nga प्रभु duai यीशु। ruba men map no iki de ka snam ko jong me. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लहू के द्वारा उन्हें क्षमा करेंगे। Lada dan na preng jo ki ibran na preng ki jing jin jar ki jing ma jo ka jing im. परमेश्वर अगर उनमें से कोई है जो अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ से Nga गुजर duai रहे ru हैं, ye ka jing da ka snam mo Jisu. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन को ढका जाए। Map i ka pop jong ki de ka snam jong me.
परमेश्वर उनके पापों को आप अपने लहू के द्वारा Ya क्षमा da करें। yaki naga jing ma jo jing pang jo jing khro. परमेश्वर आप उन्हें हर बीमारी से छुटकारा दें Daga snam ko jong Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Ai begini ke mensiam bakor ke ni amat ke jing trai ke badan bor jo mene ke mi. परमेश्वर ये सारी बहुमूल्य आत्माएं जो है आपके आश्चर्य कर्म को आज की शाम अपना सके Mensiam bakoi ngakot kerpat ke jing trai ke bajar jar ke jong mi. और पवित्र आत्मा हम आपके कार्य को कहते हैं Bamen isnai ban pleno ikhmat bekerja mensiam jong ki. कि आप इन लोगों के ऊपर दया करें और उनकी आत्मिक आंखों को Ken so खोलें thu ado kan no ke snam ke jong Jesus ka shong dor ba ka don dor yaki. ताकि वो समझे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना कीमती और बहुमूल्य है Kan lu ba me sya namar jongi. कि आपने कितना सहा हमारे लिए। Ya kata barok ba me sya nam ta jongi. जो कुछ भी आपने हमारे लिए सहा Ya ai ngo ye me ko pa. हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते Ya ai हैं ngo ba me pen em yaki. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप उनका उद्धार करते Ya ai ngo हैं ba me pen khia yaki. आप उन्हें चंगाई करते हैं Aga kerteng ke jong trai Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं Amen.